والی بال ایسوسیشن کی، یہ ان کے 4 سالہ جو انتخابات ہوتے ہیں ان کا حصہ تھا۔ یہ جو آج الیکشن ہوا ہے الحمدللہ یہ متفقہ الیکشن ہوا ہے، کسی سیٹ پر کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کسی کو، متفقہ طور پر پینل ایک ہے جس کو تسلیم کیا گیا ہے، جس کے پریزیڈنٹ شاہ نعیم ظفر صاحب اور سیکرٹری جنرل ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب منتخب ہوئے ہیں۔ یہ باقی جو صاحبان ہیں یہ وائس پریزیڈنٹس اور ممبر ایگزیکٹو کمیٹی، یہ ان کی ٹیم ہے، یہ سب لوگ مل جل کر کام کریں گے۔ اور ان کا اصل مقصد جو اس میٹنگ کا تھا کہ ہم جو ہے سب اکٹھے ہو کر ریجنل اور نیشنل والی بال کو امپروو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم میٹنگ تھی جو کہ نہایت ہی آسان طریقے سے تکمیل پذیر ہوئی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میٹنگ میں منتخب ہونے والے تمام اصحاب مل جل کر کام کریں گے، محنت سے کام کریں گے اور سندھ کے لیے والی بال کا نام روشن کریں گے۔ یقیناً جس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ تمام صوبے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ساؤتھ ایشیا لیول پہ دیکھتے ہیں تو ہماری پرفارمنس ویسی نظر نہیں آتی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان والی بال فیڈریشن چودھری محمد یعقوب چیئرمین پاکستان کی والی بال فیڈریشن کی زیر قیادت کام کر رہی ہے۔ ہم نے ماضی میں سیف گیمز میں جیتا بھی ہے، ہارا بھی ہے، ہم گولڈ میڈل بھی ہم نے جیتے ہیں، سلور میڈل بھی جیتے ہیں، لیکن اس وقت جو کام ہو رہا ہے ہماری ورلڈ میں رینکنگ جو ہے وہ 29ویں نمبر پہ ہے، جبکہ دنیا میں 220 ملک کھیلتے ہیں، اور ایشیا میں ہم 6 اور 7ویں پوزیشن پر ہیں، اور سن 1989 میں ہم ایشیا میں 4تھے نمبر پر تھے۔ اس وقت میں ایک حوالہ دیتا ہوں کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں پاکستان والی بال فیڈریشن کے، وہ اس وقت دنیا کے اہم ترین ملکوں میں ایز اے پروفیشنل والی بال پلیئرز کھیل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سربیا کی ٹیم یورپ میں ہے، وہاں پر ہمارے لڑکے کھیلتے ہیں پروفیشنل پلیئرز، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے ہیں تو لوگ ان کو لیتے ہیں۔ کوریا کی لیگ ہوئی ہے، مراد خان جونیئر جو ہے وہ کوریا میں گیا ہے، اس نے وہاں پر پروفیشنل پلیئر ہے۔ اسی طرح سے ہمارے مراد جہان اور دوسرے پلیئر جو ہے اس وقت وہ ایشیا میں ایز اے پروفیشنل پلیئر کے، یہ اس بات کی نشاندہی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان والی بال فیڈریشن کی کوششوں کی وجہ سے چودھری محمد یعقوب صاحب آئی جی پوری سے ریٹائر چیئرمین پاکستان والی بال فیڈریشن کی لیڈرشپ میں ہماری والی بال دن بہ دن امپروو ہو رہی ہے۔ جہاں آپ گیم کی بات کرتے ہیں وہاں پر والی بال مینجمنٹ کی بات بھی ہے کہ ہم نے پچھلے سال کاوا کی چیمپئن شپ کرائی ہم سینٹرل ایشیا کی لاہور میں۔ اب 11 سے 17 مئی کو ہم کاوا لیگ نیشنل لیگ کر رہے ہیں، جس میں 6 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں، جو کہ 11 سے 17 مئی اسلام آباد میں مقابلے ہوں۔ کون کون سے اس میں میں عرض کرتا ہوں مقابلے، اس میں ایک تو ہماری پاکستان ٹیم ہوگی، ہوسٹ ہے ہم، اس کے ساتھ افغانستان ہے، ایران ہے، سری لنکا ہے، ترکمانستان ہے اور کرغزستان ہے۔ یہ 6 ٹیمیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ انڈیا نے ہمیں کنفرم کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے کوئی کسی وجوہات کی وجہ پہ وہ نہیں آیا۔ تھینک یو سر۔ بہت ایسا میرا میرا نام انجینئر شاہ نعیم ظفر ہے اور میں پاکستان والی بال فیڈریشن کا سیکرٹری جنرل ہوں اور سندھ والی بال ایسوسیشن کا پریسیڈنٹ ہوں۔ آج جو یہ ہمارا الیکشن ہوا ہے، یہ الیکشن ہمارا ہوا ہے 24 سے لے کر 2028 تک کے لیے۔ سندھ والی بال ایسوسیشن کا الیکشن تھا جس میں کہ سندھ اسپورٹ بورڈ، سندھ اولمپک اور پاکستان والی بال فیڈریشن کے نمائندوں نے شرکت کی اور بڑی عوامی تسلیم سے ہمارا الیکشن اختتام پذیر ہوا اور ہمارے نئے ممبر آئے ہیں، ان میں چند ایک ممبر چینج ہوئے ہیں، باقی تو پرانے ممبر تھے۔ ینگسٹر کو ہم نے زیادہ اس میں اہمیت دی ہے کہ وہ لوگ آئیں اور کام کریں اب، کیونکہ آنے والے وقتوں میں جو رول آ رہا ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ 71 ایئر کا جو ایج کا بندہ ہو جائے گا وہ اب وہ الیکشن میں کھڑا ہوگا۔ یہ دنیا کا رول نکلنے والا ہے، تو لہذا مانی بات ہے ہم لوگ 67 ایئرس کے ہو گئے، تو یہ تو لاسٹ اچھا، آپ کی ورلڈ لیول پہ پرفارمنس کیا ہے؟ ہماری پاکستان کی ایشیا میں ہم اس وقت نمبر 4 پہ ہیں اور نمبر 5 پہ آئے ہیں انڈیا کو جیت کے۔ 7 پہ تھے پہلے ہم، پھر انڈیا کو جیتے 7 پہ آئے اور وہاں پر ہماری 159 سے 139 پہ آ گئی ہے ورلڈ کے اندر۔ پہلے ہم 159 تھے، اب ہم 139 پہ آ گئے ہیں، اور کیونکہ کوچنگ فیسلٹیز ہم کو پاکستان اسپورٹ بورڈ نے اچھی پرووائڈ کی، ایرانی کوچ دیا
ईरानी कोच के बाद में अभी जो आया हुआ है, अर्जेंटाइन से भी कोच आया हुआ है, तो जो फैसिलिटीज़ मिल जाती है बच्चों को वहाँ पर, उससे हमारे टीम में काफ़ी फ़ायदा होता है। और अभी जो हमारी सबसे अच्छी जो हमारी वो है कि हमें अपनी अंडर 18 बहुत अच्छी मिली है। अंडर 18 में सारे लड़के जो है ना वो 6'4" की हाइट के ऊपर के हैं और सारे यंगस्टर हैं। और ये टैलेंट पाकिस्तान के अंदर तो है, हम पाकिस्तान का नाम लेके कहेंगे, लेकिन ये टैलेंट जितना खैबर पख्तूनख्वा में है, हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिला है। खैबर पख्तूनख्वा के मेजॉरिटी लड़के जो है ना वो इस वक्त 6'4" की हाइट से ऊपर के, और अंडर 18 के अंदर मेरे ख्याल से कि जो हमारी 25 की टीम है उसमें 20 लड़के तो उनके होंगे, 20 के 18 के 20 के करीब। सर मेंस में जिस तरह से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्या वुमेंस के ऊपर भी इस तरह से काम किया जा रहा है? देखें, वीमेन हम बहुत पीछे हैं अभी, पीछे हैं, लेकिन ये है कि हमने वीमेन को भी शुरू कर दिया है। वीमेन की भी कोच आई हुई है, वो इस्लामाबाद में उनको ट्रेनिंग करा रहा है। वीमेन में तो फ्यूचर क्या प्रोग्राम है आपके? फीचर हमारा इस वीमेन के ऊपर ये भी चल रहा है कि हम वीमेन टीम को प्रमोट करें ज़्यादातर। तो जो कोच आई है वो अभी जो आर्मी और एयरफोर्स की जो आर्मी और वापडा की जो लड़कियाँ वहाँ पर हैं इस्लामाबाद में, वो उनको ट्रेन कर रही हैं। थैंक यू। अब ये है कि हमारी जब नेशनल चैम्पियनशिप हो जाएगी उसके बाद जो कैंप लगेगा तो हम वीमेन को भी मेन के कोच से ही जो फॉरेन में हमारा होगा आएगा उससे ट्रेन करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया साहब। जी बिल्कुल फेयर इलेक्शन था जिस तरह होता है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी नुमाइंदा मौजूद था एज ऑब्जर्वर, और मैं खुद सिंध ओलंपिक से एज ऑब्जर्वर यहाँ मौजूद थी। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन से यहाँ MB बख्श साहब तशरीफ़ लाए, वो भी एज ऑब्जर्वर इसको उन्होंने देखा है। पूरा इलेक्शन बिल्कुल जिस तरह होता है, हमारे तमाम रीजन्स के भी डिवीज़न के लोग आए हुए थे इस इलेक्शन में, और तमाम लोगों की नुमाइंदगी जो है वो 100% थी। और इसमें जो अभी 30% वुमेन का इजाफा हुआ है, पहले 20 होता था, अब 30% जो हो गया है, तो वो भी इन्होंने उस कोरम को भी पूरा किया, उस टास्क को भी इन्होंने लेके चले, और इनकी वुमेन भी बिल्कुल उसके हिसाब से पूरी उसके ऊपर उतरती हैं कि वो इलेक्शन में इलेक्ट हुई हैं। तो हम सिंध वॉलीबॉल एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इनका बिल्कुल स्मूथ इलेक्शन हुआ है और सब ने इसको ऑब्ज़र्व किया है, इसमें कोई क्यूरी नहीं है, और जिस तरह होना चाहिए टॉप टू बॉटम इलेक्शन उसी तरह से हुआ है। अच्छा ये बताइए, ख़वातीन जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपके प्लेयर्स हैं वो बड़ी वीक है, उसमें क्या वजह है? उसमें कोचिंग का मसला है, कोच अच्छे नहीं है उनके मिल रहे, तो क्या वजह है? जबकि जेंट्स की जो वो मैन है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको पता है ख़वातीन के साथ अपने भी बहुत सारे मसाइल होते हैं और घर से निकलना मुश्किल होता है, तो इनके डेफिनेटली जो बच्चा ग्राउंड पहुँचेगा तो वो कुछ लेके हासिल करके ही पाएगा। तो जो है वो इनकी कोचिंग बहुत, हमारे जो मेंस की कोचिंग करते हैं इसी तरीके से वुमेन की कोचिंग की जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली देखिए हम इन्होंने वुमेन को इंडेक्ट किया, 30% जो है वुमेन जो हैं वो इसमें इंडेक्ट थी, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा, और अब इनकी वुमेन जो है अच्छा, इलेक्शन में कौन कौन सेलेक्ट हुआ, किस किस ओहदे पर? जी हमारे पास जो है वो शाह नईम ज़फ़र साहब जो एज अ प्रेसिडेंट आए हैं, और शाहिद मसूद साहब जो हैं वो एज अ सेक्रेटरी जनरल हैं, और ट्रेजरर जो हैं वो फुरकान साहब हैं, और इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट आई हैं हमारी वुमेन साइड पे अंजुब ज़हरा हैं, और मैडम फ़रकंदा फसी हैं, तो एसोसिएट सेक्रेटरी में मैडम कौसर वगैरह हैं। तो ये सारे इसमें टोटल कितने मेंबरान होते हैं ओहदेदारों के अलावा? 24 होते हैं तकरीबन मेंबरान इसमें। ठीक है, थैंक यू। वॉलीबॉल एसोसिएशन का इलेक्शन था, मैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से एज ऑब्जर्वर सना अली वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की, उन्हें नॉमिनेट किया गया था। उन्होंने जो है थॉरली उसको ऑब्ज़र्व किया, और मुझे मालूम भी हुआ है कि इसमें फेडरेशन के भी MB बख्श साहब लाहौर से इस इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, और गवर्नमेंट का भी नुमाइंदा इसमें मौजूद था, इस्माइल साहब का इसमें उन्होंने भी ऑब्ज़र्व किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, और तमाम डिवीज़नों के लोग हैदराबाद में कोका, चक्कर, लाड़काना, बेनज़ीराबाद और कराची ने सब ने पार्टिसिपेट किया है, और बहुत अच्छा क्लीन
इलेक्शन हुआ है और उसमें शाहीन जफर साहब प्रेसिडेंट हैं सिंध वॉलीबॉल एसोसिएशन के इलेक्ट हुए हैं और मोहम्मद शाहिद जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर 4 साल के बाद सबका इलेक्शन होता है और स्मूथली सिंध वॉलीबॉल एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ है। सिंध में भी सिंध वॉलीबॉल की अच्छी एक पोजीशन है और इनकी स्टैंडिंग भी अच्छी है, अच्छे खिलाड़ी हैं मेल फीमेल के। और अभी सिंध गेम्स 18वें सिंध गेम कराची में ऑर्गेनाइज हुए, उसमें भी सिंध वॉलीबॉल ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया, इन्होंने जीता भी है। कराची डिवीज़न ने पहली पोजीशन भी हासिल की है और एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से सिंध वॉलीबॉल एसोसिएशन के शाहिद मसूद और इनकी टीम ने भी सिंध ओलंपिक में 18 सिंध गेम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत अच्छा इन्होंने सपोर्ट की है। तो मैं तमाम ऑफिस बेरर को मुबारकबाद देता हूँ कि ये स्मूथली तरीके से इलेक्शन होकर ये कामयाब हुए हैं और इन फ्यूचर भी इनकी नेशनल और इंटरनेशनल भी इनका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। वो फेडरेशन भी जानती है कि सूबे सिंध से अच्छे ये नुमाइंदे हैं यहाँ से और इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिंध में मैन और वुमेन वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो मैं एक मरतबा फिर सिंध वॉलीबॉल एसोसिएशन के अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। रहीम शाहिद मसूद सेक्रेटरी जनरल सिंध वॉलीबॉल एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान वॉलीबॉल एसोसिएशन। ये हमारी जो है बड़ी ही इस वक्त सूबे सिंध में वॉलीबॉल की एक ही बॉडी है, कोई पैरल बॉडी नहीं है। इस वजह से हमें सिंध स्पोर्ट भी तरजीह देता है, सिंध ओलंपिक भी देता है और हमारी माशाल्लाह इस वक्त इतनी अच्छी कारकर्दगी है इस वॉलीबॉल में कि हमारी बच्चियाँ अब डिपार्टमेंट में जाके खेल रही हैं, उनको रोज़गार मिला है। सिंध की बच्चियाँ हमारा रोज़गार मिला है। तो हमारी कारकर्दगी की वजह से आपने देखा होगा कि कोई भी यूनिवर्सली सब चीज़ हल हो गई। अच्छा, ये इलेक्शन फेयर हुआ है, आप इस पे मुतमईन? बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है, आपने ऑब्ज़र्व किया है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। चलिए, थैंक यू। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से एक मेरा क्वेश्चन लास्ट में, पाकिस्तान में जिस तरह से देखा जाए तेज़ी से वॉलीबॉल फैलता भी जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें एशियाई लेवल पर ख़वातीन की बहुत ही तादाद कम नज़र आती है और उनके इवेंट्स बहुत कम दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी। इसके हवाले से क्या कहना? इस हवाले से ये है कि पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी ख़वातीन पे, लेकिन अभी तवज्जो देने शुरू की है और हमारी पहली दफ़ा टीम बांग्लादेश गई है बीच में ख़वातीन की, अभी इटली टीम जा रही है हमारी। तो इंशाल्लाह हम इसमें भी वो करेंगे। हमने हमेशा हमारे चौधरी साहब का ये वो मौक़िफ़ रहता है कि फ़ॉरेन कोचेज़ आए, हमारे दोनों के फ़ॉरेन कोचेज़ हैं इस वक्त और वो ट्रेनिंग दें। थैंक यू।